Hey guys, welcome back to Watch Your Struggle. So today's video is going to be about my journey, um, way back from class 11 and JE and everything. So as you all know, I'm Aresh. I'm a software engineer working at Twilio, and it's been over how many years? 2 years, one, seven, seven plus two, 7 plus 1, almost 8 years since I've been not exactly engineering, since I've been dreaming of engineering and pursuing engineering. So it all starts right after class 10, where, I got pretty low percentage. I got fucking 83%. That's so low. But still, I had a dumb idea of getting into science. It's, I don't know, just because I got 100 on 100 for computer science, I thought I'd be a great software engineer. What touch turns out, I'm a decent one. So, yeah, right after class 10, I joined this JEE tuitions. Like everyone in India, they know you need to go through IIT JEE mains in advance to get into engineering college. Things were good. First 6 months I studied and I was, not a brag, but I was in the top 10 in my at least in my, coaching center per se. But then life happened. I met a few friends. Um, I don't have a lot of regrets about it. I mean, I do regret it a little bit. I would have been in a better place probably, but I did have a lot of fun, so I don't know. Basically, I fucked up. I messed up my, you know, education per se. Stopped studying and my scores tanked. And well, before I could see, I was sitting in front of an offline paper, which is like, what, 30, 32 pages big. That question paper was 32 pages big. It's like, fuck. And I was getting that paper. Turns out I don't know anything. Fuck, I used to like physics and I can't even answer something on physics. I ended up getting a really bad score. I mean, like, Bassi, I'm out there. I got less than you. I got fucking 5 lakh. My JE rank after my first attempt was freaking 5 lakh, 32,000, something like that, which was crazy. But मेरा दिमाग वहां भी नहीं चमका. I'm like, but जो कर सकते हैं. So I took a drop year and I went into the same coaching again. Uh, Varun sir, God हो भाई आप आपके बिना कहीं नहीं होता मैं. But yeah, I started taking studies a little bit more seriously. But again, लड़की का चक्कर बाबू भैया हो गया मेरे साथ. I found this girl. She was very pretty, very nice. And 4 महीने उड़ गए. भाई दैट ब्रेकअप वाज बैड बट एनीवेज. तो उस चक्कर में फिर एजुकेशन थोड़ी फक हो गई थी. आई ट्राइड टू रैम्प इट बैक अप बट ज़्यादा नहीं कर पाया. एंड में आई गॉट 96.8 परसेंटाइल आई थिंक. बेसिकली इतनी नहीं मिली कि किसी आईआईटी तो छोड़ो, किसी एनआईटी में भी सीएस मिल जाता. आई वॉज गेटिंग ट्रिपल आईटीज बट देन आई डिसाइडेड ऑन एनआई, विच वाज प्रिटी गुड कॉलेज. आई मेट अमेजिंग पीपल देयर. सो ये सब हो गया. अब पहुंच गया भैया कॉलेज में. अब कॉलेज में ये सोच के पहुंचे थे कुछ तो करना है, राइट? आई मीन, सब 2-2 साल के बाद सब सीधा स्कूल के बाद आ रहे हैं. मैं 1 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुका हूँ, तो कुछ तो करना था. तो एकदम स्टार्टिंग से आई got into doing stuff like even before I had joined my hostel, even before I had selected my college, I started studying. So I learned Python, a bunch of Python. Python was actually my first, like not exactly my first programming language because मैं आईसीएससी में था तो वहाँ पे हमें जावा सिखाते थे. So after Java, Python was the first language I properly learned. फिर मेरे को सीनियर जूनियर से बात हुई, some amazing seniors. So one of them said कि simple track है, तुम पहले वेब डेव करो, फिर अगर पसंद आया तो ऐप डेव करो, वरना फिर एमएलए में घुस जाओ और डीएस के साथ में करते रहो. तो ऐसा लाइक ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने वेब डेव से स्टार्ट किया. एच टी एम एल सी एस एस सीखा. मैं थोड़ा चूतिया था, मेरे को उस टाइम जेएस में मजा नहीं आता था बिकॉज आई डिडंट लाइक द लैंग्वेज. तो आई वाज लाइक फक जेएस में, जेएस करेगा ही नहीं, वो सब कुछ पाइथन में करेगा. तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्लास्क एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ स्टफ इन फ्लास्क. एंड obviously people started noticing around कि कुछ कर रहा है, ये पढ़ रहा है, मतलब he's making projects and shit. So I got into a lot of clubs. So first semester खत्म हुआ. At the end of first semester I was already a member. तो मतलब मैं पहले भी था, but I was like one of those volunteers, sort of exicom बोलते थे हम, exicom of my ITB student batch in college. सही है. फिर 2 महीने बाद I got an internship and it was a pretty good internship. I learned a lot of stuff. लाइक मैंने Vue.js वहाँ सीखा. लाइक प्रॉपर वेब डेव तो मेरी वहीं स्टार्ट हुई थी.
So I did that. Surprisingly, I worked in that place for 2.5 years. That's crazy. Like the amount of time I spent there, the amount of things I learned there, the way I've seen that company grow, and the way I've seen like the way people there, helped me and were always there was amazing. The best place I could work at. So वो सब हुआ. And then COVID. अब कोविड के टाइम सीन क्या था, मैं मैसूर में फंस गया था. Everyone was in college, everyone went back home and I was stuck in Mysore at my friend's place. And अब वहाँ बैठे मैं अकेले. It was me and one of my friends at another friend's place. We got stuck in Mysore. So I was like, fuck it, अब घर तो जा नहीं सकते, यहीं बैठे क्या करना है, कुछ करने को है नहीं, कॉलेज वॉलेज चल नहीं रहा है. तो I started grinding. And the amount of shit I learned in those 4 months was crazy. उन 4 महीनों में मैंने Vue.js ढंग से सीखा है, मैंने Flutter सीखा है, मैंने React सीखा है, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग सीखा है. सो आई गॉट इनटू actually deploying my servers onto AWS instead of Heroku. So I learned load balancing, I learned EC2 setup करना, I learned basics of K8s. So वो 3 महीने तो भाई क्रेजी थे, मतलब अमेजिंग. लाइक उन 3 महीने बाद जब मैं कॉलेज आया, I was a completely different person. I was like 100 steps ahead of all of my peers. Not all, there were obviously other people like me who were doing crazy shit in their life. So वो सब हुआ. एंड सेकेंड ईयर भी कोविड में उड़ गया, घर पे बैठे थे, पढ़ रहे थे, चल रहा था सब कुछ. लाइक जब कॉलेज आ रहे हैं तो पार्टी वार्टी चल रही है, घर पे हैं तो पढ़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. फिर आया सेकेंड ईयर का एंड. फोर्थ सेमेस्टर के एंडिंग में आई, फोर्थ सेमेस्टर के मिड में आई पहली कंपनी JPMC, JP मॉर्गन एंड चेज. उसमें बैठे, राइट. अब उस टाइम था भाईचारा ऑन टॉप. तो बेसिकली हम सारे एक रूम में, 6 लौंडे एक रूम में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. 2 क्वेश्चंस आए हैं. एंड एक क्वेश्चन मैंने बना लिया, एक क्वेश्चन मेरे एक और फ्रेंड ने बना लिया. हम 6 के 6 राउंड के क्वेश्चन तो क्लियर हो गए. फिर हुआ उसका सेकंड राउंड. सेकंड राउंड किसी का भी क्लियर नहीं हुआ, सब चुत गए, कोई नहीं पहुंचा. तो ठीक है. फिर उसके बाद वापस कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, हम वापस घर चले गए. फिर फोर्थ सेम के एंड में आई फेडलिटी. जिस दिन मैं वापस कॉलेज आया था उसके एक दिन पहले फेडलिटी का टेस्ट हुआ, क्लियर हो गया. सेकंड राउंड हुआ, वो भी क्लियर हो गया. HR राउंड हुआ, वो भी क्लियर हो गया. फक. सेकंड ईयर में मेरे को जॉब लग गई. बट वो पैकेज था अराउंड आई थिंक 13 LPA CDC था एंड 11 का बेस था. तो आई वॉजेंट हैप्पी, बिकॉज यूट्यूब यूट्यूब पे हर जगह 35-50 के पैकेजेस चल रहे हैं, लोग लाख के ऊपर महीने कमा रहे हैं. यहाँ तो मतलब मैं टैक्स वैक्स काट के 80 पहुंचता हूँ मुश्किल से. तो आई वॉजेंट सेटिस्फाइड. एंड अ लॉट ऑफ माई सीनियर्स वर लाइक, भाई अच्छी जॉब लग गई है, क्यों इतने उंगली कर रहा है. लाइक नहीं यार, और चाहिए और चाहिए. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग एट अदर प्लेसेस ऑफ कैंपस वगैरह. फिर थोड़े टाइम बाद वीज़ा आई. अब टेक्निकली, क्योंकि वीज़ा और फेडलिटी सेम ग्रुप में थी, सो हाउ कॉलेज में ऐसे क्या चलता है कि यू हैव कैटेगरीज, यू हैव मास, कोर, ड्रीम, ओपन ड्रीम. ठीक है. तो आई थिंक 0 से 3 लाख के बीच में मास होती है, 3 लाख से 9 लाख के बीच में कोर होती है, उसके ऊपर ड्रीम होती है, उसके ऊपर ओपन ड्रीम होती है. तो फेडलिटी और वीज़ा दोनों ड्रीम कैटेगरी में थी. तो मेरे को टेक्निकली उसमें बैठना अलाउड नहीं था. बट बैक देन आई वाज वर्किंग विथ मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट टू मेक द प्लेसमेंट पोर्टल ऑफ आर कॉलेज. वो प्रोजेक्ट काफ़ी आगे गया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, अलग बात है, बट उस पर बड़ा काम किया था हमने. तो आई वाज इन गुड टर्म्स विद द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट. तो मैंने चाबी घुमाई, मैंने ट्राई वाई किया और ल- काम बन गया और मेरे को बैठने मिला. बट फिर बहन चोद वीज़ा का एग्ज़ाम आया. हो क्या हगा था, एक क्वेश्चन नहीं बना भाई. लेजिट नम फर्स्ट क्वेश्चन वाज कार्डिनलिटी सर्च. मतलब कार्डिनल सर्च कैसे समझाऊं कैसे होता है. कार्डिनलिटी सॉर्ट, सॉरी, कार्डिनलिटी सॉर्ट. एंड लेट मी गूगल. मैं एग्जैक्टली भूल गया क्या था, बट कार्डिनलिटी सॉर्ट एन, हाँ, सॉर्ट एन एरे अकॉर्डिंग टू द काउंट ऑफ सेट बिट्स. सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इजी था, बट मैंने हक दिया. हुआ ही नहीं भाई, बना ही नहीं. मैंने 1 घंटे का पेपर है, 45-50 मिनट्स के आसपास, तो उस क्वेश्चन पे सॉल्व कर दिया, बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज. फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आई गॉट वेरी क्लोज टू आंसर, देन एंड में मैं ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा था. मैंने भाई उस एक पेपर पे पहले पाइथन से सॉल्व किए, फिर जावा से सॉल्व किए, फिर दोनों नहीं हुए तो JS पे आ गया, फिर वापस घूम के पाइथन पे आ गया. बट वो क्वेश्चन नहीं बना. एंड सेकंड क्वेश्चन था आइलैंड्स वाली प्रॉब्लम जो होती है बेसिक तुम्हारे DFS की, कि वंस और जीरो के मैट्रिक्स दिए, तुम आइलैंड्स निकाल लें, वंस के आइलैंड्स निकाल लें. तो उस टाइम तो चलो DFS आते नहीं था, उसने तुमको ये भी नहीं पता कि ये वो क्या बोलते हैं उसको, पे सेट प्रॉब्लम्स में से एक है, कि ये तो मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स है.
तो हक दिया बड़ा गंदा। एंड आई वाज इन शैम्बल्स कि भाई ये क्या हुआ। इतना बुरा तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो मेरे को आता है भाई, कॉलेज में नाम है भाई लौंडे का, कुछ तो करना है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया डीएसए। कसम से पसंद नहीं आया, आज भी पसंद नहीं आता। मैं लीग रोड की एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, अभी भी मैंने 100 के आसपास ही क्वेश्चन करे हुए हैं। बिल्कुल मजा नहीं आता। लीड कोड पे बताता हूँ मैंने कितने कर रखे हैं। लीड कोड पे 119 क्वेश्चन है मेरे पास। मेरे को पसंद ही नहीं है भाई, मजा ही नहीं आता। बिल्कुल मजा नहीं आता। तो हम लाइक ठीक है, किसना तो पड़ेगा, अब कुछ बेटर चाहिए तो करना पड़ेगा। फिर उड़ती हुई थी खबर है, क्योंकि मैं प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा था, तो मेरे को पहले पता लग गया था ट्वीली आ रही है। एंड नो, नो कैप लेजिड, मैंने अपने प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के सामने बोलता भाई हमारे कॉलेज तो कोई ले नहीं पाएगा कंपनी। Legit, like I have my peers sitting there, I have my placement coordinator sitting there, I have a few of my professors sitting there, and मैंने मुंह पे हिंदी में सीधा बोल दिया भाई ट्विलियो तो कोई निकाल ही नहीं पाएगा। Because I knew what Twilio was. I knew Twilio was an amazing engineering first company and kept products कितने गांड फाड़े and all that. तो वो हुआ। फिर मैं सबकी शक्लें देखी, मेरे को रियलाइज, ओ फक, ये तो नहीं बोलना था। तो मैंने फिर बोला नहीं नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे, ब्लेज निकाल, मतलब ब्लेज इज माय सीनियर, ही इज द बेस्ट सीनियर्स आई कुड get, and he's also the best engineer, one of the best engineers I know. So I had to rectify, so like ब्लेज निकाल लेगा, ब्लेज भी जैसे लोग निकाल लेंगे। एंड देन एग्जाम हुआ। दो क्वेश्चंस थे, 90 मिनट्स का। सो इट वाज 90 मिनट्स पेपर फॉर टू क्वेश्चंस। वन वाज अ फर्स्ट वाला तो बहुत ही सिंपल था, एरे मैनिपुलेशन का था कि तुम्हें क्या बोलते हैं, एक लंबी सी एरे दी है, उसका साइज वाइज दिया है, उसको सॉर्ट करो, मैनिपुलेट करो, एक फॉर्मेट पे आंसर लाओ। तो वो तो हो गया। सेकेंड वाला स्ट्रिंग का था, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। एंड स्ट्रिंग में बेसिकली तुम्हें रेगेक्स टाइप कुछ करना था, बट रेगेक्स यूज के बिना करना था। तो वो भी हो गया। अब मेरा 90 मिनट का पेपर 29 मिनट्स में हो चुका है। आई एम द फर्स्ट वन टू फिनिश इट ऑफ। लेजिट 29 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर खत्म, दोनों क्वेश्चन था। तो मेरे को लगा भाई ये तो बढ़िया हो गया, शायद मिल जाए। फिर मैंने फ्रेंड्स से पूछा, बहुतों का तो हुआ ही नहीं, जिनका हुआ उनका फिर 45 मिनट्स 50 मिनट्स में हुआ था। तो आई वॉज वेरी श्योर कि भाई आ रहा है, शॉर्ट लिस्ट तो हो रहा हूँ। एंड देन लिस्ट आई, दो बंदों का नाम आया, मेरा नाम नहीं आया। आई वॉज फक्ड। दिमाग फट गया, कैसा कैसे हो सकता है। तो मैं गया अपने डिपार्टमेंट के पास, मैंने बोला सर देख लो यार, मेरा इतनी जल्दी हो गया था, जिनका जिनकी शॉर्ट लिस्ट हुई है उनका मेरे को पता है, उनका मेरे से ज़्यादा टाइम में हुआ है, क्या सीन नहीं है। तो अगेन सिंस आई वाज इन गुड टर्म्स विद माय प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने मेरी तरफ से कंपनी को मेल भी लिखा कि क्या इसका देखो, ये है वो है ना, था ना। बट देन आई कंक्लूडेड कि शायद सीजी की वजह से नहीं हुआ। बिकॉज सीजीपीए की हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट उनकी ये था कि 8.5 से ऊपर हो तो बेटर है। और मेरी उस टाइम 8.4 थी। 0.4 से था मैं। तो फिर दिया, उन लोगों ने इंटरव्यू दिया। उसमें से एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने हक दिया, ही शुड हैव बीन देयर इंस्टेड ऑफ मी, बट ठीक है। तो उसका उनका नहीं हुआ। सेकंड लिस्ट आई, सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आ गया। आई एम लाइक फक यस, कुछ तो सही हो रहा है जिंदगी में। उस पर भी दौड़े लगे। अब सीन ये था, उसका मेरा उसका फर्स्ट इंटरव्यू, जो फर्स्ट दो लोगों का इंटरव्यू हुआ था, वो हुआ था अराउंड आई थिंक 28 या 29 नवंबर को। आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, बिकॉज उस टाइम मेरी सिस्टर की वेडिंग शादी हुई थी। तो मैं लिटरली जिस दिन निकला था कॉलेज से बहन की शादी के लिए, उस दिन मेरे फ्रेंड्स इंटरव्यू दे रहे थे। तो उसके बहुत टाइम बाद जान के स्टार्टिंग में आया कि वापस से ले रहे हैं भाई, लाइक ठीक है, सही है। तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था अराउंड 15-16 जान के आसपास, वो पोस्टपोन हो गया। क्योंकि दूसरे एक कॉलेज में, मतलब ग्रुप में होना था, 6-7 लोगों का साथ में इंटरव्यू होना था, तो दूसरे किसी एक कॉलेज में एग्जाम थे, तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि उनके एग्जाम हो जाए तब। अब इंटरव्यू पड़ा 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्या है, 2 फरवरी को मेरे लैब एग्जाम्स है, वो भी माइक्रो प्रोसेसर के। अब जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में है ऑलरेडी, उनको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर का लैब एग्जाम होता है बहुत ही खतरनाक। बिकॉज तुम्हें लिटरली असेंबली में प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तुम्हें दो प्रोग्राम मिलेंगे, तो असेंबली में सॉल्व करना है। एक प्रोग्राम होगा इनपुट लेकर आउटपुट निकालने का, दूसरा प्रोग्राम होगा जो एक्चुअली एक माइक्रो प्रोसेसर पर रन होगा, जो लिटरली एक चिप पे जाके रन हो रहा है। एंड वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज तुम्हें असेंबली में करना है। तो मेरी दुकान फटी पड़ी है। मेरा 11 बजे इंटरव्यू है, 11 बजे फर्स्ट इंटरव्यू है, 12 बजे सेकंड इंटरव्यू है, और 1 बजे मेरा वो है, क्या बोलते हैं, एग्जाम है। तो मैं गया एचओडी के पास कि मैम देखो यार, कुछ करना है। मना कर दिया कि नहीं, हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, तुम देखो, तुम इंटरव्यू दो या एग्जाम दो, तुम्हारे ऊपर डिग्री चाहिए, जॉब चाहिए। देखो टू बी ऑनेस्ट, हम जैसे लोग कॉलेज जाते हैं जॉब के लिए, बट सी इंडिया की डिग्री बिना जॉब भी नहीं मिलेगी। तो करना तो दोनों है। तो मैं सेकंड ऑप्शन गया। मैं गया, मेरी एमपी की टीचर थी मिशेल मैम। तो उनको बहुत सताया था भाई मैंने पूरे सेमेस्टर। बट वो अच्छी टीचर थी, एंड शी रिस्पेक्टेड few people, and she knew that I was doing something in life. I was doing internships, I was working on shit. तो शी वाज लाइक ठीक है, तुम जाओ, दो प्रॉब्लम आएंगे, एटलीस्ट एक पूरा सॉल्व कर लेना, और सेकंड में कुछ लिख के आता ना, मैं तुम्हें पास कर दूंगी। लाइक ठीक है।
चलो बढ़िया। फिर इंटरव्यू दिया 11 बजे। फर्स्ट इंटरव्यू वाज मेरा क्या बोलते हैं HR प्लस टेक्निकल। तो वो जो इंटरव्यू था फर्स्ट इंटरव्यू HR प्लस टेक्निकल, उसमें क्या था, स्टार बेस्ड क्वेश्चन आए थे। स्टार वही होता है, सिचुएशन टास्क एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट वाला एक क्वेश्चन आया। और फिर उसने मेरे से नॉर्मल थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे, मेरा प्रोजेक्ट खोल के देखा। लाइक आई वाज वेरी सरप्राइज, पहली बार मैं देखा था इंटरव्यू में अगर मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ तो वो गिटहब पे जाके मेरे प्रोजेक्ट खोल के उसमें कोड बाय कोड में से लाइन बाय लाइन में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो वो हुआ। ठीक ठाक गया, एक दो फंबल कर दिया मैंने। जैसे एक उसने नेटवर्किंग क्वेश्चन पूछा था। अब सीन ये, वो पढ़ाया था बट कोविड में पढ़ा तो था नहीं, तो मैंने बोल दिया कि पढ़ाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट। तो वो मान गया। तो ये थोड़ा सा फक हुआ था। फिर सेकंड इंटरव्यू था मेरा कोडिंग का, कोडिंग राउंड था। अब उसमें क्वेश्चन आया था मेरा, ये वाला MN रूम वाला, कि रूम इतने से इतने बजे तक बुकड हैं, तो मैं मल्टीपल रूम्स की लिस्ट मिली है, तो मैं निकालना है कौन से टाइम पे फ्री है। तो लकीली वो क्वेश्चन मैं निकाल लिया। उसका O ऑफ आई थिंक O ऑफ n स्क्वायर निकाला पहले, फिर O ऑफ n log n निकाला। फिर उसने बोला कि O ऑफ n में हो सकता है। आई एम लाइक ठीक है। अब ये था कि जो मैंने ब्लेज बोला था, ब्लेज के फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में क्लियर हो गया था, ब्लेज ऑलरेडी फील्ड का ऑफर लेके बैठा था। तो मैंने ऑब्वियसली ब्लेज से जाके बात की थी, तो ब्लेज ने मेरे को बताया था कि भाई देख ले, जो करना है कर। बट दिस इंटरव्यू इज सपोज टू बी टॉकिंग इंटरव्यू, तुम्हें पेयर प्रोग्रामिंग करनी है, तो सामने बंदे से जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछो। तो सीन ये था कि एन स्क्वायर और एन लॉग तो मैंने ऐसी हवा में निकाल लिया था, बिकॉज इजी प्रॉब्लम तो इतना तो मतलब आता ही है। एंड जब उसने ओवन बोला तो मेरे को सही में नहीं आता था, कि मेरे दिमाग ही नहीं चल रहा कि ओवन कैसे निकालूं इसका। फिर मेरे को याद आया कि इसने बोला था भाई क्वेश्चन पूछियो। तो मैंने पूछा। अब सीन ये हुआ कि देखो, जैसे मैंने पहले बोला मैं डीएसए करता नहीं हूँ। तो उस बंदे ने अज्यूम किया थोड़ा बहुत डीएसए तो करता ही होगा। तो उसने मेरे को बोला बहुत ईजी है, प्री सम यूज करो। प्री सम ही बोलते हैं या क्या बोलते हैं? हाँ, प्री सम यूज करो, ऐसा कुछ बोलते थे, ठीक है। मैं लाइक बेंचो, प्री सम क्या होता है? क्योंकि डीएसए तो किया नहीं मैंने। तो मैंने 15 मिनट से फंबल किया कि आई एम लाइक, इसको नहीं बताना कि मेरे को प्री सम नहीं पता, लग जाएंगे, क्या सोचेगा, खुद से कुछ ना कुछ फिगर आउट करते हैं। 15 मिनट हगने के बाद आई वाज लाइक फक इट, ऐसे भी इंटरव्यू गई है, पूछ ही लेते प्री सम होता क्या है। तो मैंने पूछा। अब बहनचोद प्री सम पता है क्या होता है? अगर तुम्हारी एरे है, लेट्स से एरे है तुम्हारी 1 2 3 4 5, अगर तुम्हें इसका प्रीसम करना है तो बेसिकली 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर रहा हो। इतनी शर्म आई थी ना कतई मेरे को ये पूछते हुए कि बहन मेरे को ये नहीं पता। तो वो करा, मैं ठीक है भाई, कर देते हैं। अब ये तो इम्प्लीमेंट कर ही लेना था, तो उसने बताया ये करना है, तो मैं ठीक है, मैंने ये करा एंड निकाल लिया सोल्यूशन वो फाइल में। डॉट 45 मिनट्स का इंटरव्यू था, 50 मिनट्स लगाए थे मैंने, 50 मिनट पे हो गया था। तो ये सब करा ना, वॉजन श्योर कि क्या होगा। एंड फटी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ही फटी पड़ी थी, क्या करना है, क्या करना है। तो मैंने बोला भाड़ में जाए, मेरे को बचपन से बास्केटबॉल खेलना पसंद है। मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड्स को कि भाई सीन है क्या, तो मैं चला गया खेलने। अब वहाँ मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, उसके बीच में मेरे को कॉल आता, मेरे को मतलब मेरा फ़ोन साइड पे रखा हुआ था, मेरा व्हाट्सएप पे आया कि रे शर्मा सेलेक्ट हो गए हैं, उनको हम हायर कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए। और मेरे को पता नहीं, मैं तो खेल रहा हूँ। फिर वहाँ मैं देख रहा हूँ अचानक से मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं कोर्ट की तरफ भागते हुए। एंड फिर मेरे को पता चला कि फक मेरा हो गया। एंड वो ऐसा सीन था ना कि मेरे को कसम समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। आई जेन्युइनली डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आई वाज़न्ट श्योर क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है लाइफ में। कुछ करना तो अचीव कर लिया, लोग आसपास के सारे खुश हो रहे हैं, मेरे को भी खुश होना है, बट आई डेंट हैव अ रिएक्शन, आई वाज लाइक फक, अब क्या। उसके बाद घर वालों को बताया, घर वाले भी खुश हो गए, सब खुश। हम लाइक ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप। सो एट दिस पॉइंट बस नेक्स्ट स्टेप कुछ था नहीं, क्योंकि जब तक इंटर्नशिप होती नहीं, जब तक मेरे को पीपीओ, जो ये नहीं पता चलता पीपीओ मिल रहा है नहीं मिल रहा, तब तक कोई नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो मैं फिर काम पे लग गया। आई वाज ऑब्वियसली डूइंग एन इंटर्नशिप बैक देन आल्सो एंड आई कंटिन्यूड दैट इंटर्नशिप। मैं ठीक है भाई करो। तो इंटर्नशिप कर रहा था मैं। फिर मेरे को ट्विलियो की इंटर्नशिप का लेटर आया, ट्विलियो की ज्वाइनिंग डेट वगैरह आई, वो सब करा। बहुत मज़ा आया, लाइक इंटर्न में तो बहुत मज़ा आया था, मेरी टीम बहुत अमेजिंग है एंड लकीली मैंने वापस उसी टीम को ज्वाइन किया। इट वाज अ लॉट ऑफ फन, हैड अ लॉट ऑफ फन, हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरे इंटर्न के लास्ट डे पे मेरे को एचआर का इन्फॉर्मल आ गया था कि तुम्हें पीपीओ मिल रहा है। मैं तुम्हें डायरेक्ट ऑफर लेटर भेजता, बट तुम्हारी इंटर्न खत्म हो रही है, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि पीपीओ हो मिल गया है, बट तुम्हें ऑफर थोड़ा टाइम बाद आएगा। आई एम लाइक ठीक है ब्रो, चलो। तो पीपीओ पे मिल गया। अब मेरा ये था कि मैं जहाँ काम करता हूँ, मेरे को 2.5 साल हो गए थे। एंड आई वाज लाइक अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, 2.5 साल से सेम जगह काम कर रहा हूँ एंड आई वाज मोर और लेस ऑन द सेम प्रोडक्ट, मतलब 1 साल एक प्रोडक्ट पे था और बचे हुए 1.5 साल एक और दूसरे प्रोडक्ट पे था। तो 1.5 साल से एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, कुछ नया करते हैं, ग्रोथ नहीं आ रही। तो मैंने वो छोड़ा।
मैंने फिर लिंक्डइन पे डाला कि भाई आई एम लुकिंग। तो मेरे को लिंक्डइन से आया एक कंपनी है ट्राइमेक्स हेल्थ केयर बोल के। दे वांटेड फ्लटर इंजीनियर। और उस टाइम पे मैं फ्लटर बहुत कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अप्लाई, मतलब मेरे को सामने से आया कि फ्लटर इंजीनियर चाहिए, आप लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे। तो मैं ठीक है भाई। पे रेट डिस्कस हुई, सब कुछ डिस्कस हुआ, 2 महीने मज़ेदार काम किया, मज़ा आया। फिर 2 महीने के बाद मैंने पूछा। और हाँ, इसमें ये था कि इसी टाइम पे मेरे को सुपर टोकन्स के, मैंने अपने एक पर्सनल प्रोजेक्ट में सुपर टोकन्स यूज़ किया था। तो मेरे को सुपर टोकन्स के डेवरल का मैसेज आया था लिंक्डइन पे कि आपने यूज़ किया, आपको कैसा लगा। अब उनको लगा होगा कि भाई कोई है बड़ा बड़ा, इनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कॉलेज का बच्चा हूँ। तो लाइक मैं ढूंढ ही रहा था, उस टाइम ट्राइमेक्स का सेट हुआ नहीं था, मैं ढूंढ रहा था लाइक लेट्स शूट माई शॉट एंड लेट्स आस्क। तो मैंने उस डेवरल वाले बंदे से पूछ लिया कि आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम गिग, डू यू गाइस हैव सम ओपनिंग। तो उसने बोला पूछ के बताता हूँ। तो टर्न्स आउट दे वांटेड अ फ्लटर इंजीनियर। सॉर्टेड। बट जब तक उनका रिप्लाई आता, उनका जो एचआर था, आई वोंट नेम ड्रॉप, बट उनका जो एचआर था, उन्होंने मेरे को कॉल किया था। मैंने आई थिंक मैं उस टाइम ट्रैवल कर रहा था, अपने फैमिली के साथ हिमाचल वगैरह घूम रहा था। तो उस चक्कर में मेरी कॉल मिस हो गई थी उनसे। तो आई वाज लाइक, तो ठीक है, उनसे कॉल मिस होगी, ट्राइमेक्स वाले से बात होगी, ट्राइमेक्स वाले को यस बोल दिया, तो अब इनको तो यस बोल नहीं सकता। तो फिर इस बात पे ख़त्म किया था कि अभी मैंने जहाँ ज्वाइन किया वहाँ 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो आज एक ठीक है, मैंने बात करी। 2 महीने ट्राइमेक्स काम किया। फिर ट्राइमेक्स के 2 महीने के बाद मैंने उनसे पूछा क्या सीन है, एक्सटेंशन करना है नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा काम अच्छा लगा, बट तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और अपनी टाइमिंग से बैठ पा रही। बिकॉज एक्चुअली what they were actually paying very well. They were paying something that they would have paid you know a not a full time but a पार्ट टाइम इंजीनियर जो कॉलेज में नहीं होता। जो लोग होते हैं ना जो मल्टीपल पार्ट टाइम्स करके काइंड ऑफ फ्रीलांस करके करते हैं, उस टाइम की वे मेरे को दे रहे थे। बट बिकॉज मैं कॉलेज स्टूडेंट था, मैं क्लास अटेंड करनी थी। अब फेल तो होना नहीं है, डिग्री तो चाहिए। तो उस चक्कर में टाइम मैच नहीं पाती थी मेरी। तो उन्होंने एंड में ये बोला कि यार तुम्हारा काम अच्छा था, बट हमें ऐसा बंदा चाहिए जो पूरे दिन रह पाए, जो 9 to 5 कर पाए हमारे साथ। तो लाइक ठीक है भाई। 9 to 5 नहीं था उनका, एक्चुअली पार्ट टाइम के चक्कर में उनका टाइमिंग 9 to आई थिंक 9 to 1 या 2 थी। बट ऑब्वियसली उस टाइम मेरा कॉलेज होता था एंड उनकी स्टैंड अप होती थी 9 बजे। तो मैं लिटरली कितनी बार क्लास के बीच में स्टैंड अप ज्वाइन करता था। तो वो सब हो गया, वो निकला। फिर मेरे को याद है, अरे यार सुपर डोमन से बात की थी, उनको कॉल करते हैं। मैंने कॉल किया। फिर मेरी क्या बोलते हैं, इंटरव्यू वगैरह हुआ, उन्होंने ऑफर किया पार्ट टाइम। तो वहाँ की पार्ट टाइम टाइमिंग्स थी मेरी आफ्टर कॉलेज विच इज़ लाइक 5 o'clock to 8 o'clock। सही है, बढ़िया। एक तो सुपर टोकन ज्वाइन करके जो मेरे को रियलिटी चेक मिला ना भाई, कि कुछ नहीं आता। क्योंकि मैं आज तक प्रोडक्ट्स लिख रहा था, वो भी स्मॉल स्केल प्रोडक्ट्स, नॉट प्रोडक्ट्स जो मिलियंस ऑफ लोग यूज़ कर रहे हैं, तो लिखा जा रहा था। फिर सुपर टोकन्स में आके जो मैंने एसडीके लिखना स्टार्ट की, भाई दिमाग फट गया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। यहाँ पे म्यूटेक्सेस यूज़ कर रहे हैं, लाइक लिटरली जो कॉन्सेप्ट्स मैंने ओएस ओएस में पढ़े थे, वो कॉन्सेप्ट्स में एक मैं रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा नहीं था कभी करूँगा। तो दिमाग फट गया। एक तो रियलिटी चेक में कि भाई कुछ नहीं आता, ही पढ़ना है। और तो वो स्टार्ट हुआ। बट लकीली वहाँ जो मेरा मेंटर था, बहुत ही बढ़िया, एकदम बेस्ट पर्सन आई कुड हैव मेट। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी एंड किसी तरह मैनेज कर लिया। अब सीन ये हुआ कि दिसंबर में, मिड दिसंबर मेरे को, मैं, हाँ मिड दिसंबर 13th या 14th को मेरे फ्रेंड की कोई में जॉब लगी थी। तो हम रात को दारू वारू पी के सोए। सुबह बीच हैंगओवर में मेरे को कॉल आया 12 बजे कि मैं ट्विटर से बात कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस वी वोंट बी एबल टू ऑनबोर्ड यू एंड वी आर रिसेंडिंग ऑल आवर ऑफर्स। एंड मेरी फट गई। लाइक ऑब्वियसली पहले तो मुझे लगा कि मैं जो प्रैंक वैंक हो रहा है। तो मैंने कॉल मिलाया इधर उधर, मैंने ब्लेस को कॉल मिलाया कि वो ट्विलर में था, ही वॉज वर्किंग देयर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 7 8 months नाउ। उसको कॉल किया, उसने बोला मैं बताता हूँ। फिर मैंने मैनेजर को कॉल किया। उन्होंने बोला कि मैं 5 मिनट कॉल बैक कर रहा हूँ। फिर उनसे बात हुई, पता चला कि ये सीन है, ये वो है। सही में गए ऑफर। तो ऐसा ठीक है, अब देखते हैं। क्योंकि अभी तक जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप नहीं था ना, मेरे को नेक्स्ट स्टेप मिल गया कि भाई अब तो कुछ करना है। मैंने मिलाया कॉल, मैंने सबको कॉल मिलाया कि भाई ये हो गया है, देखो कहीं कुछ मिलता है तो, रेफरल मेफरल मिलता है तो 2 हफ्ते मराई हो, 2 हफ्ते नहीं, हफ्ते पर मैंने मराई कि भाई कहीं तो मिले, कुछ तो मिले। एक ऑफर मिला, बट मज़ा नहीं आया कि मतलब ट्विलियो ने तो मेरे को क्या क्या ऑफर दिया था, हाईएस्ट ऑफ माई कॉलेज। एंड देन मेरे को क्या ऑफर मिल रहा था। तो लाइक ठीक है, एक बार सुपर टोकन से पूछते हैं। तो हमारा सीटीओ था, मैंने सीटीओ को मैसेज किया कि भाई फ्री हो तो 10 मिनट कैचअप कर लो, कुछ पूछना है। तो मैंने उसको बोला कि ये मेरा पैकेज था, ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो इज लाइक ठीक है, मैं कल तक बताता हूँ। उसने एक्चुअली बोला कि मैं ट्विलियो का ऑफर मैच नहीं कर पाऊंगा, बट मैं समथिंग वेरी कंपेरेबल दे दूंगा एंड तुम्हें कल तक बताता हूँ। इनफॉर्मली मैं हाँ बोल रहा हूँ, कल तो मैं एक बार फॉर्मली बताता हूँ।
तो मैं ठीक है। अब कल जब वो फॉर्मली वाली कॉल हुई, आई डेंट नो कि वो एक सूडो मतलब एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप है। आई एम लाइक फक ऑफ। मैं बैठा हूँ कि वही मैं सुनूंगा, हाँ वो बोलेगा हाँ या ना, एंड वहाँ बात खत्म होगी। कॉल ज्वाइन ही, वहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि डेटाबेस में इंडेक्सिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन टोकन्स क्या होता है, जेडब्ल्यूटी क्या होता है। एंड आई एम लाइक यार, आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। वो तो लकीली चलो क्वेश्चंस इजी थे, इन क्वेश्चंस का आंसर आता था, बट देन आफ्टर अ पॉइंट आई टोल्ड हिम कि यार आई वॉजंट रेडी फॉर दिस। फर्स्ट दो तीन क्वेश्चन आंसर किया, बोला यार आई वॉजंट रेडी फॉर दिस, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉन्वर्सेशन नॉट एन इंटरव्यू। He's like, it's fine. I only had these three questions, so you cleared it off. So this. We are we're gonna give you an offer for this. And first 6 months would be probation. So will be probation, and you can tell that to your college as internship. We'll pay you this amount for 6 months and this amount after that. I'm like, ठीक है। 2 घंटे बाद ऑफर लेटर आ गया। And I was like, fuck yeah, sorted. So with super tokens, it was always like shoot your shot for a scenario. Okay, I just took my shot and it ended up happening. So वो हुआ। फिर सुपर टोकन्स पे काम किया फरवरी। फरवरी में ज्वाइन फुल टाइम काम करना स्टार्ट किया। अगेन लाइक आई सेड, सुपर टोकन्स का टेक इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब काफ़ी चीज़ें एस डी के लेवल पे जब तुम लिखते हो तो मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी सोचनी पड़ती है, तो तुम एज अ डेवलपर नहीं सोचते, क्योंकि नाउ यू आर राइटिंग कोड दैट अदर डेवलपर्स वुड यूज। सो अ लॉट ऑफ डीएक्स कॉन्सेप्ट्स एंड अ लॉट ऑफ यू नो ऑप्शनैलिटी कम्स इन। कि जब तुम प्रोडक्ट लिख रहे हो, तुम ऐसी एपीआई लिख रहे हो, तुम खुद अपने फंक्शन से कॉल करने वाले हो, तो तुम्हें उतने ऑप्शन की जरूरत नहीं है। बट जब तुम एक ऐसी एपीआई लिख रहे हो जो सामने वाला डेवलपर किसी भी सिचुएशन में कॉल कर सकता है, यू नीड टू थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट ways he or she would be calling that, and all the different things he or she would need out of it. So वो बहुत तगड़ा था भाई, दिमाग खराब। वो 8 महीने जो काम था ना भाई, आधे टाइम तो दिमाग खराब होता था। एंड सेकेंडली सीन ये था, वहाँ मेरा थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस आ गए थे। एनवायरनमेंट वाइज मैं जिस टाइप का एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट करता था, मैंने आज तक जिस टाइप का वर्क एनवायरनमेंट देखा था, वो थोड़ा मैच नहीं पा रहा था। तो उस चक्कर में आई वाज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड देयर। एंड सब कुछ हुआ जुलाई तक। आई वाज लाइक फक। जुलाई तक मार्केट ठीक होना स्टार्ट हो गई थी, एंड देयर वर जॉब ओपनिंग्स अगेन। एंड आई वाज लाइक कि यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। ग्रोथ बहुत है बट भाई मज़ा नहीं आ रहा, एंड आई कांट स्टे हियर फॉर वेरी लॉन्ग बिकॉज आई डोंट लाइक द वे थिंग्स आर वर्किंग हियर। नो नो नो, no dirt to be thrown on Superdogs, but they have a different way of, the different organizational structure, different way they wanted to do things, and I had a different way. So ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं था। And plus anyways I wanted, anyways उस टाइम मैं मास्टर्स की सोच रहा था, तो I was anyways gonna leave and go to a bigger company because I wanted, you know a tag sort of। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट में होता, मैं मास्टर्स ले जा रहा हूँ, तो कॉलेज रेज्यूमे के लिए वो इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट बहुत काम आता। सिमिलरली जैसे कॉलेज रेज्यूमे के लिए इंजीनियर ट्विलियो बहुत काम आएगा मेरे को। अब तो मैं सोच नहीं रहा हूँ मास्टर्स का, बट उस टाइम ये थिंकिंग भी थी मेरी एक। तो इन दो रीजंस के लिए हम लाइक चलो ढूंढते हैं। मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, 2-3 जगह अप्लाई किया, एक जगह से ऑफर भी आ गया। अब फनी सीन इतना हुआ कि सिंस आई वाज नॉट हैप्पी एट दैट वर्क प्लेस, मैं अपने ट्विलियो वाले मैनेजर के साथ टच में था, क्योंकि जब गई थी ऑफर तब भी उन्होंने बोला था कि डोंट वरी, मैं गारंटी दे रहा हूँ साल 2 साल के अंदर मैं तेरे को इसी कंपनी में लेके आऊंगा। विच वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर मी, एंड आई स्टिल थैंक हिम, आई एम स्टिल वर्किंग विद हिम, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स आई कुड फाइंड। सो आई वॉज इन टच विद हिम, एंड आई वॉज लाइक यूज्ड टू कीप टेलिंग हिम कि सर यहाँ मजा नहीं आ रहा यार, देखो अगर कुछ हो पाता है तो। तो उनके तरफ से था, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ओपनिंग्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वहाँ से कुछ आता है तो आता है, तब तक अपना तो ट्राई करे, कहीं और जाए। तो स्टार्टेड अप्लाइंग, 3-4 जगह मैंने इंटरव्यूज दिए, एक जगह से ऑफर लेटर आया। एंड आई किड यू नॉट, आई वॉज लिटरली टाइपिंग माई मेल टू दिस XYZ कंपनी कि आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट योर ऑफर, एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई नाउ मैनेजर। एंड ही इज लाइक, देयर इज एन ओपनिंग, अपना रेज्यूमे और अपना ईमेल आईडी मेरे को भेज दे, तेरे को 3-4 दिन में ऑफर लेटर आ जाएगा। एंड सिंस यू आर रीजॉइनिंग, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ ट्विलियो एट सम पॉइंट एंड यू जॉइनिंग द सेम रोल, तेरा इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, यू जस्ट गेट एन ऑफर लेटर, यू गेट अ जॉइनिंग डेट एंड यू जॉइन। आई वाज लाइक नाइस। 2 सेकंड में रिएक्ट नहीं करता है कुछ। फिर मेरा नेक्स्ट रिएक्शन वाज कमांड डे माइनस, थैंक यू फॉर द ऑफर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड खुशी खुशी सो गया मैं उस रात। अब ये था कि मेरे को सुपर डोगन्स पे नोटिस पीरियड डालना था, बट ये भी नहीं कर सकता कि अब तक ऑफर लेटर नहीं आया, कैसे डाल दूँ। तो फिर फाइनली मेरे को 2-2.5 हफ्ते बाद थोड़ा सा ऑफ लेटर में डिले हो गया था, बिकॉज फाइनेंसेस वगैरह कुछ चल रहे थे। तो 2 हफ्ते बाद मेरे को ऑफ लेटर आया, आई रोट माई रेजिग्नेशन एट सुपर टोकन्स एंड आई गॉट हियर। सो that's been my journey, like
अब मैं हूँ यहाँ पे, साल भर होने वाला है। आज कितनी तारीख है? आज 24th जुलाई है। वेरी सून, आई थिंक 22nd August or something like that, I will be finishing off, completing my 1 year at Twilio. It's been amazing and I look forward to working here. तो टोटल गेट अवे मेरा इस स्टोरी से यही है कि यार मतलब कॉलेज वट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ वन मेन रीजन विच इज कंसिस्टेंसी। मतलब कॉलेज में मेरा ऐसा सीन था कि रात को मैसूर था, मैसूर में 11:30 बजे, 11:30 12 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। तो हम 11:30 12 बजे पी पा के पार्टी वार्टी करके घर आ रहे हैं, उसके बाद भी आई यूज टू मेक श्योर कि मैं 1 घंटा, जितने भी नशे में हो, मेरे को 1 घंटा बैठ के काम तो करना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है। तो वो है, so that was the biggest way I could, do anything. So consistency, bhai, consistency very important. That's consistency and hard work is what helped me out a lot. And second thing was, bhai, I took my shots. I took some risks. Um, risks तो actually उतना नहीं लिया. I played it pretty safe, but I always believed in myself and I kept taking shots, kept doing the next thing. So that helped out. So that's my takeaway from this video कि यार मतलब कॉलेज में हो, कुछ आगे दिख नहीं रहा, बस करते जाओ, तुम्हारे कॉलेज में कंपनी आ जाएगी। कॉलेज में नहीं आएगी तो यू नो ऑफ कैंपस अप्लाई करो, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। मेरे को भी ऑफ कैंपस मल्टीपल ऑफिस मिलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा ट्विलियो का ऑफर है उससे वेरी क्लोज, अगर तुम आरएससी हटा दो तो उससे वेरी क्लोज ऑफर्स मैंने निकाल लिए थे। सुपर टोकन्स का ऑफर तो बहुत, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर था। अगर तुम ऑल कैश पे जाते हो तो मेरा कैश कंपोनेंट वहाँ पे थोड़ा ऊपर था, एंड ट्विलियो कंपेरेबल ऑफर्स मैंने निकाल लिए थे। तो ऑफ कैंपस में भी भाई, अगर तुम्हारे पास स्किल है, अगर तुम सीख रहे हो, तुम चीज़ें कर पा रहे हो, तुम कोड लिख सकते हो, तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, तो मिल जाएगा। इजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, एक्चुअली वेरी इजी। तो या दैट्स अबाउट इट, यही था, यही जर्नी है अभी। आई थिंक रोड मैप मैं तो बनाने नहीं वाला, बिकॉज बड़े बड़े लोग बैठे हैं यूट्यूब पर बनाने के लिए। I'll continue posting, more project stuff on here. And finally finished, almost finished off one of the most technically challenging project I've worked on till date. तो उसके बारे में वीडियो आएगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें बहुत मजा आएगा। तो या, पीस आउट।